بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میں یوٹیوب فیملی میں ڈاکٹر عثمان شفاعت۔ تو آج میں پھر ایک بار ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جس کا موضوع ہے اوپن شرک ان درگاز ایکسپوز بائی انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ تو امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ بہت کچھ سیکھیں گے، شرک کے بارے میں سیکھیں گے کہ شرک کیسے ایکسپوز ہوا ہے درگاز میں۔ میں نے بھی بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے درگاز میں، وہ درگاہ پہ چادر چڑھاتے ہیں اور مردوں سے وہ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ سے مانگنے کے بجائے وہ مردوں سے مانگتے ہیں وہاں پہ جا کے۔ تو شرک کو تو بولا گیا ہے کہ شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے، سارے گناہ کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کر دیں گے، لیکن شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اس ویڈیو میں ہم لوگ انشاءاللہ، مجھے ٹاپک سے لگ رہا ہے کہ درگاہ پہ جو یہ شرک ہوتے ہیں، خواجہ سے پتہ نہیں کن سے لوگ مانگنے کے لیے جاتے ہیں، بہت بڑے لیول پہ ان کا بزنس چلتا ہے، لوگوں کی کمائیاں بھی ہو رہی ان سے، اور مردوں سے وہ لوگ مانگتے ہیں۔ مردوں کو تو خود دعا کی ضرورت ہوتی ہے، وہ کیا ہمیں دیں گے؟ مجھے تو آج تک ہی سمجھ میں نہیں آتا ہے، جو خود ہیں، جن کو خود نہیں پتہ ہے کہ ان کو کب اٹھایا جائے گا، کب کیا ہے، لیکن ان سے لوگ مانگنے جا رہے ہیں، اور کتنی بڑی گناہ کر رہی ہے، ان کو اس گناہ کا اندازہ بھی نہیں ہے، اور جاہلیت کے بارے وہ کر رہے ہیں۔ ان کو قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے۔ اب جو بھی مانگو اللہ سے مانگو، اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا، اللہ نے ہر ایک چیز ہمارے لیے بنایا، رزق دیا ہمیں صحت دیا، ہمیں کیا نہیں اللہ تعالیٰ نے دیا، پھر بھی ہم ان سے مانگنے جا رہے ہیں۔ تو پھر امید کرتے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی، تو لاسٹ تک ویڈیو میں بنے رہنا، تبھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی، اور اللہ کرے آپ لوگ جو بھی اس میں سے اگر شرک کر رہے ہو تو ان کو اللہ صحیح سمجھ دے اور وہ اس چیز سے دور ہو جائے، توبہ کرے۔ تو پھر چلے چلتے دین کی باتیں ساتھ میں سیکھتے ہیں۔ پانا ہے کچھ مقام تو خواجہ کے در پہ آ، ہونا ہے کامیاب تو خواجہ کے در پہ آ، لانا ہے انقلاب تو خواجہ کے در پہ آ، تقدیر ہے خراب تو خواجہ کے در پہ آ، جو بھی دے گا تجھ کو وہ دے گا حساب سے، پانا ہے بے حساب تو خواجہ کے در پہ آ۔ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائیے، مولا غریب نواز، مولا غیب سے مدد فرمائیے، حضور آپ دنوں کے حال بہتر جانتے ہیں، مولا غریب نواز ان کی تقدیروں کو سنوار دیجیے، اپنے دروازے سے نعمتیں بخش دیجیے غریب نواز۔ میرا بگڑا وقت سنوار دو، میرے بگڑا وقت سنوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا خیر، تیرا دیار ہے دار السلام یا خواجہ، تجلیاں ہے نئی صبح و شام یا خواجہ، نہ فکر میں نہ غم جام تیرے مستوں کو، تیری نگاہ سے چلتا ہے کام یا خواجہ۔ غوث پاک آپ کے گناہگار مرید آئے ہیں، ہماری جھولی بھر دیجیے، جھولی کو میری بھر دو، ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا، میری لاج رکھ لو یا غوث، میں مرید ہوں تمہارا، میں مرید ہوں تمہارا، ماں محتاج تو حاجت روا، المدد یا غوث اعظم سیدہ۔ If you were born between 1980 and 2000 تو Axis Max Life لایا ہے ایک solid term plan۔ بھلا کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور کس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا؟ پھر ہم نے اس سے سرسبز باغ اگائے، تمہارا کام تو نہ تھا کہ تم ان کے درختوں کو اگاتے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ لوگ رستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ بھلا کس نے زمین کو قرارگاہ بنایا اور اس کے بیچ نہریں بنائیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے، اور کس نے دو دریاؤں کے بیچ اوٹ بنائی؟ یہ سب کچھ اللہ نے بنایا، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ ان میں اکثر علم نہیں رکھتے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں،
मगर तुम बहुत कम गौर करते हो। भला कौन तुमको जंगल और दरिया के अंधेरों में रास्ता बताता और कौन हवाओं को अपनी रहमत के आगे खुशखबरी बनाकर भेजता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। ये लोग जो शिर्क करते हैं, अल्लाह की शान उससे बुलंद है। भला कौन खलकत को पहली बार पैदा करता फिर उसको दोबारा पैदा करेगा? और कौन तुमको आसमान और जमीन से रिज्क देता है? ये सब कुछ अल्लाह करता है। तो क्या अल्लाह के साथ कोई और माबूद भी है? हरगिज नहीं। कह दो कि मुशरिको, अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। और ये लोग अल्लाह के सिवा ऐसी चीजों की परस्तिश करते हैं जो न इनका कुछ बिगाड़ ही सकती हैं और न कुछ भलाई कर सकती हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। कह दो, क्या तुम अल्लाह को ऐसी चीज बताते हो जिसका वजूद उसे न आसमानों में मालूम होता है और न जमीन में? वो पाक है और उसकी शान उनके शिर्क करने से बहुत बुलंद है। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हो और न कुछ समझते ही हो, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करे। लोगों, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो कि जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, अगरचे उसके लिए सब इकट्ठे हो जाएं। और अगर मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उसे उससे छुड़ा नहीं सकते। तालिब और मतलूब यानी आबिद और माबूद दोनों गए गुजरे हैं। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र जैसी करनी चाहिए थी, नहीं की। फिर जब जान गले तक आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो, और हम उस मरने वाले के तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। बस अगर तुम किसी के बस में नहीं हो तो अगर सच्चे हो तो तुम जान को लौटा क्यों नहीं लेते? और किसी शख्स में ताकत नहीं कि अल्लाह के हुक्म के बगैर मर जाए। उसने मौत का वक्त मुकर्रर करके लिख रखा है, और जो शख्स दुनिया में अपने अमाल का बदला चाहे उसको हम यही बदला दे देंगे, और जो आखिरत में तालिब सवाब हो उसको वहां अजर अदा करेंगे, और हम शुक्रगुजारों को अनकरीब बहुत अच्छा सिला देंगे। और जिन लोगों को ये अल्लाह के सिवा पुकारते हैं वो कोई चीज भी तो नहीं बना सकते, बल्कि वो खुद बनाए जाते हैं। वो तो मुर्दा हैं, बेजान। उनको तो ये भी मालूम नहीं कि उठाए कब जाएंगे। लोगों, तुम्हारा माबूद तो एक ही माबूद है। सो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल इनकार कर रहे हैं और वो सरकश हो रहे हैं। ये जो कुछ छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं अल्लाह जरूर उसको जानता है। वो सरकशों को हरगिज पसंद नहीं करता। और जब इन काफिरों से कहा जाता है कि तुम्हारे परवरदिगार ने क्या उतारा है, तो कहते हैं पहले लोगों की हिकायतें। ऐ पैगंबर, इनको बकने दो, ये क़यामत के दिन अपने अमाल के पूरे बोझ भी उठाएंगे, और जिनको ये बेतहकीक गुमराह करते हैं उनके बोझ भी उठाएंगे। सुन रखो कि जो बोझ ये उठा रहे हैं बुरे हैं। इनसे पहले लोगों ने भी ऐसी ही मक्कारियां की थीं, तो अल्लाह का हुक्म उनकी इमारत की बुनियादों की तरफ से आ पहुंचा, और छत उन पर उनके ऊपर से गिर पड़ी, और ऐसी तरफ से उन पर अजाब आ वाक़े हुआ जहां से उनको ख्याल भी न था। सूरज खत्म हो जाए सारे इंसान मर जाएंगे, चाहे कोई बुजुर्ग है या गैर बुजुर्ग है, चाहे मुसलमान है या काफिर है। पारा सूरज खत्म, जमीन अपनी नबातात नहीं पैदा कर सकती, फोटोसिंथेसिस के जरिए जो करती है। जब जमीन उगाना छोड़ देगी तो अगर आप जानवर भी खाएंगे तो कितना अरसा, जिस तरह हमारे हुक्मरान हमें कहते हैं कि अगर टमाटर महंगे हैं तो दही डाल लो, तो अगर जमीन उगाना छोड़ दे तो हम जानवर खाएंगे तो कितना अरसा, मछलियां खाएंगे तो कितना अरसा, वो भी सारी मर जाएंगी हमारे खाने से पहले ही। दुनिया पे मौसमों का तब्दील होना, हवाओं का चलना, हर जिंदा चीज की खुराक ये एक सूरज के ऊपर डिपेंडेंट है।
तो फिर सबसे बड़ा मुश्किल कुशा कौन हुआ? सूरज। आज तक किसी काफिर ने भी कहा अल मदद या सूरज मेरी मदद फरमाइए, हमें कभी वहम भी नहीं आता। सूरज की बरकत से ही ग्लेशियर्स का पानी पिघल के दरियाओं में आता है। जमीन के नीचे भी दरिया चलते हैं, जमीन के ऊपर भी, जिस पानी से हम लोग जिंदा हैं। और वो ग्लेशियर्स तक पानी पहुंचना भी सूरज की वजह से है, क्योंकि सूरज वेपोरेट करता है समुद्र के पानी को, वो हवाओं और बादलों की शक्ल में हम पर बारिश की शक्ल में और पहाड़ों पे बर्फ की शक्ल में बरसती है। वरना ये करोड़ों टन पानी अगर समुद्र से शिफ्ट करना पड़े, उसका नमक निकाल के ग्लेशियर के ऊपर, पूरी इंसानियत क़यामत तक भी लगी रही, ये नहीं कर सकती। जो कहते हैं जी खुद ब खुद हो रहा है, और जो काम करने से ना हो वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? जब तक आप उसके पीछे डिवाइन सोर्स ना मान लें। God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. खुदा ही वजाहत है इस कायनात में होने वाले हर फिजिकल फिनोमेना के पीछे, वो डिवाइन सोर्स है। ड्यूटी लगाई हुई है। 15 अरब साल से सूरज चल रहा है, उसमें फ्यूल कौन डाल रहा है? उसे कान से पकड़ के कौन चला रहा है? सूरज को खुद भी नहीं पता कि वो क्या कर रहा होगा। लेकिन सूरज को हम क्या मुश्किल कुशा मानते हैं? हालांकि सारी मुश्किलें हमारी वही हल कर रहा है। हम कहते हैं सबब है, फिर भी नहीं पुकारते। इतने बड़े सबब को आप पुकार नहीं रहे तो बाबे किधर से आ गए? बाबे तो खुद आपके नजरानों पे चलते हैं। खाना खा ले तो उन्हें टॉयलेट की जरूरत पड़ जाती है। और जो कोई कहता है ना मैं समुंदर, दरिया या जलजला रोक सकता हूं, वो अपना पेशाब को रोक के बता दे। नहीं। वो पिछले दिनों एक इंडिया के वो मौलाना साहब की वीडियो भी अपलोड हुई थी ना, कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी की मजलिस में एक वक्त के बहुत बड़े वली बैठे थे, उस दौरान उन्हें पेशाब आ गया और शिद्दत सीधी थी, तो रोक लेते ना। इन्हें खुद मान लिया कि बुजुर्ग नहीं पेशाब रोक सकते। वो कहते अब्दुल कादिर जिलानी ने एंड जनाब चादर सुटी, उन्होंने जाके डिगी थे, फिर किसी मैदान पहुंच गए थे, फारे होके वापस आए, तो रोक लेंदे ना। उसमें अल्फाज है, वो कहते हैं वो बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, पेशाब नहीं रुका। नहीं रुक सकता ना, इंसान बहुत कमजोर है। खाना ना खाए जिंदा नहीं रह सकता, मोहताज है। सूरतुल मायदा की आयत नंबर 72 में आया ईसा और उनकी मां रोटी के मोहताज थे। अगर ईसा उलुल अज़म पैगंबर मोहताज हैं खाना खाने के, और उनकी मां सारे बुजुर्गों से बड़ी बुजुर्ग वलिया मरियम बिनते इमरान वो रोटी की मोहताज है, तो बाबों की क्या औकात है? रोटी के मोहताज है, और रोटी खा लें तो निकालने के मोहताज, ना निकले तो फिर परेशानी। सब कुछ अल्लाह कर रहा है। तो मेरे भाई, जब ये अल्लाह कर रहा है, पुकारना अल्लाह को है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये हमारा मेन झगड़ा है शिर्क के हवाले से। हजारों बातें एक तरफ, असल बात यह है कि असल शिर्क हुआ है इय्याका नस्तईन में। इबादत की कोई शक्ल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, नजर, न्याज, सब अल्लाह के लिए, सब देते भी अल्लाह के लिए। बस इसाले सवाब की नीयत करते हैं, वो छोटा मसला है। ठीक है, मैयत की तरफ से इसाले सवाब हो सकता है, लेकिन इय्याका नस्तईन में मुसलमानों की अक्सरियत शिर्क कर रही होती है। अच्छा, नमाज में नहीं करती। नमाज में आज तक किसी ने या अली मदद या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद नहीं पढ़ा। नमाज में क्या पढ़ते हैं? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो सर, मौला अली भी नमाजों में अल्लाह को पुकारते थे, नमाज के बाद भी अल्लाह को पुकारते थे। मौला अली का मानने वाला वो होगा जो मौला अली की तरह अल्लाह ही को पुकारे, वरना मौला अली का मानने वाला तो वो ना हुआ। तो ये आप देखें कितनी बड़ी जुर्रत का ये लोग काम कर रहे होते हैं। हम जब समझाते हैं तो कहते हैं आप गुस्ताखी कर रहे हैं। सर, जब आप ईसाइयों को समझाते हैं ना कि हजरत ईसा इब्न मरियम अल्लाह के बेटे नहीं है, तो ईसाई भी यही समझते हैं आप हजरत ईसा की गुस्ताखी कर रहे हैं। और कुरान में तो बहुत सख्त बात आई है। सूरह अल माइदा की आयत नंबर 17 में, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम। बेशक वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि ईसा इब्न मरियम ही अल्लाह हैं। उसके बाद कितने सख्त अल्फाज हैं। कुल, ऐ नबी तुम फरमाओ, फमन यमलिकु मिनल्लाहि शैआ, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ लेगा। इन अरादा अन युहलिकल मसीह इब्न मरियम व उम्महु व मन फिल अर्दि जमीआ, कि अगर अल्लाह इरादा करे कि ईसा इब्न मरियम और उनकी मां को और सारी मखलूक को
हलाक कर दे, अल्लाह का कोई क्या बिगाड़ सकता है। अच्छा, शिर्क किया ईसाई। तो माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे से वीडियो में दिखाया कि कैसे लोग दरगाह में जाके मांगते हैं, वहाँ पे लोग कह रहे हैं कि आप अल्लाह देगा, मतलब ये देंगे, जो मुर्दे हैं वहाँ पर, कि वो आपको प्रोवाइड करेंगे, वो आपकी दुआ को सुनेंगे। कैसे इम्पॉसिबल है ये चीज़, कैसे वो आपकी दुआओं को सुनेंगे? वो तो खुद ऑलरेडी डेड है, वो उनको तो खुद दुआ की ज़रूरत है। वो आपकी चीज़ों को कैसे वो पूरा करेंगे? आपको जो भी मांगना है अल्लाह से मांगना है। अल्लाह ने हमें हर एक चीज़ दिया है और इंशाल्लाह अल्लाह ही हमें हर एक चीज़ देगा भी। और आप लोग से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग अगर जो भी कोई करते हैं तो इस शिर्क से बचें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों को समझ में आए कि क्या चीज़ें हैं जो वो उस गुनाह से बच जाएंगे। बहुत बड़ी गुनाह है ये। तो आप लोग भी जो भी वीडियो देखते हैं आप अपना शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा सवाब भी कमाएं। आप दीन की दावत देंगे तो आपकी वजह से जो लोग इस चीज़ से हटते हैं तो सारा सवाब नेकी आपको जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।